Hello students, we have finished our first chapter. Now we can start our second chapter, that is inverse trigonometric functions. Inverse functions of trigonometric functions. So the same theory we will use here. If we are having a function f and its inverse g, then f of g and g of f are identity function. So keep it in your mind. We are doing now inverse of trigonometric functions. So we are having 6 trigonometric functions. Fx equals sin x is the first one. We will discuss about trigonometric functions, their domain, their range and graphs, and also inverse of these functions. So first function is fx equals sin x. You know the value of sin x is always lies between -1 to 1. So its range is always -1 to 1, close interval of -1 to 1, and the domain is any real number. We can have x any real number. It means here with sin x, in this place of x we can take any real number, either positive or negative or integer or rational number or irrational number, any real number. So x is from domain real number r and the range will be -1 to 1. And you're also knowing one thing, if in the 4 quadrants you are having, there is sign positive in first quadrant, in second quadrant it is also positive, then in third and fourth quadrant it is negative. And I want to tell you the graph of this. We have gone through this graph in class 11th also. This is a sine graph. On y-axis it is 1 and it is -1. On x-axis it is pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. In left hand side minus pi by 2, minus pi, -3 pi by 2 and -2 pi. And the graph starts like this. It is maximum at 1 on pi by 2, then it reduces in positive but becomes 0 on pi, then it reduces in left negative up to -1 at 3 pi by 2, and then increases in negative and comes at 0 on 2 pi. And similarly same here in the left side. You are knowing one thing, its value from -1 to +1 occurs in -pi by 2 plus pi by 2 interval. So in -pi by 2 plus pi by 2, also then pi by 2 to 3 pi by 2 also. Here it is +1, it is -1. तो पूरी रेंज हमें जो है -pi by 2 से pi by 2 के बीच में भी मिलती है, -1 से +1, और pi by 2 से 3 pi by 2 के बीच में भी मिलती है, +1 से -1. ये देखिए, और इधर देखिए ये -pi by 2 से 3 pi by 2 के बीच में -1 से लेकर के +1 तक ग्राफ जा रहा है. यानी रेंज हमें अलग अलग इंटरवल्स में, इसमें और इसमें अलग अलग इंटरवल्स में मिलती है. ग्राफ आगे चलता जाएगा, रेंज आगे चलती जाएगी, एंड सो ऑन. मैंने यहाँ 3 डॉट्स लगा दिए. सिमिलरली इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. सो ग्राफ इज हैविंग सो मैनी इंटरवल्स वेयर इट अकर्स टू इट्स रेंज. दीज ऑल इंटरवल्स आर कॉल्ड branch values, but one out of them is called principal branch value. So now go through it. In all the such intervals, sin x has its value -1 to 1 and fx equal to sin x will be 1 1 and on 2. यानी हमारा जो फंक्शन 1 1 और on 2 होगा, इस इंटरवल में भी 1 1 ऑन 2 होगा, इस इंटरवल में भी 1 1 ऑन 2 होगा. 1 1 ऑन 2 कैसे होगा कि x की कोई भी डिफरेंट 2 वैल्यू लीजिए, फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आएगी. और हर y की वैल्यू के लिए इस इंटरवल में कोई ना कोई x अवेलेबल है. चेक कर लीजिए, आप कहीं से भी चेक कर लीजिए, कोई भी. देखिए मैं आपको पेन से बताऊं. मान लीजिए आप यहाँ चेक करना चाहते हैं, यहाँ से आपने एक लाइन डाली, एक लाइन डाली. इस y के लिए ये रहा x, इस y के लिए ये रहा x, इस y के लिए ये रहा x. तो हर y के लिए कोई ना कोई x है. ये ऑन 2 भी है और 1 1 भी है. तो इन सब इंटरवल्स में ये फंक्शन fx इक्वल टू sin x विल बी 1 1 एंड ऑन 2 फॉर द रेंज -1 to 1. Corresponding to each such intervals, we get a branch of the function sin x, sin inverse. The branch with range -pi by 2 pi by 2 is called principal branch.
दिस इज अ कॉमा। द ब्रांच विद रेंज -π/2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। यानी ये वाली जो ब्रांच है, इस रेंज वाली जो ब्रांच है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। सारी ब्रांचेज है लेकिन -π/2 से π/2 वाली को हमने माना है प्रिंसिपल ब्रांच। सो दिस रेंज ऑफ द ब्रांच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच, वेयर एज अदर इंटरवल्स एज रेंज गिवन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइन इनवर्स। यानी कि ये प्रिंसिपल ब्रांच है, बाकी सारी डिफरेंट ब्रांचेज हैं। देयरफॉर साइन इनवर्स, अब इनवर्स फंक्शन हमारा जो है, साइन एक्स हमारा फंक्शन था r से -1 to 1 में, इनवर्स फंक्शन होगा हमारा साइन इनवर्स सच दैट -1 to 1 to -π/2 π/2 -π/2 to π/2। दिस इज द रेंज एंड दिस इज द डोमेन। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इस ब्रांच वैल्यू में हमारा फंक्शन 1/1 है, तो इस ब्रांच वैल्यू में ही वो इनवर्स क्रिएट करेगा। वो किसी भी ब्रांच वैल्यू में इनवर्स बना सकता है, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमने जब मान लिया है तो हमारा फंक्शन साइन इनवर्स -1 से इसी ब्रांच वैल्यू में होगा, और इसमें वो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमने साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करा के कहा है कि साइन इनवर्स सच दैट -1 to 2 -π/2 to π/2 ये हमारा डोमेन है और ये हमारी रेंज है इस इनवर्स फंक्शन के लिए। एंड इट इज़ डिफाइंड एज, ये देखिए ये फंक्शन है हमारा साइन, और साइन इनवर्स हमारा इनवर्स ऑफ द फंक्शन है। तो मैंने कहा था यदि दोनों कंपोजिट किए जाएं तो आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ऑलवेज एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस। एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अब की बार इनवर्स बाहर है और ये आपका फंक्शन है, यानी ये एफ ऑफ एफ इनवर्स था, ये एफ इनवर्स ऑफ एफ है, तो यहाँ पर ये आएगा साइन एक्स इनपुट है तो एक्स आएगा। अब साइन एक्स कहाँ से लिया था हमने, साइन एक्स हमने लिया था रियल नंबर से, तो ये एक्स जो है ये रियल नंबर यानी कि -π/2 to π/2 को जो रिप्रेजेंट करेगा। इन अदर वर्ड्स, इफ y इक्वल साइन इनवर्स एक्स, देन दोनों तरफ साइन कंपोज करिए, साइन y इक्वल साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये वापस क्या बन जाता है एक्स। यहाँ से देखिए तो साइन y इज इक्वल टू एक्स। ये ना सोचो कि हमने इसको इधर शिफ्ट करके ये लाए हैं। कभी कभी ये कन्फ्यूजन बच्चों में हो जाता है कि साइन इनवर्स को इधर ले लो, ये बन जाएगा। ऐसी बातें कभी कभी कुछ अध्यापक भी बता देते हैं गलती से उनको, लेकिन पता है कि ऐसा नहीं है, पर वो इस झंझट से बचने के लिए कह देते हैं कि इसको इधर ले लीजिए आप, ये हो जाएगा। ये इधर कभी नहीं आएगा, इसका ये कंपोजिशन करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। सो दिस वाज इनवर्स ऑफ द फंक्शन साइन एक्स। नाउ व्हाट अबाउट इट्स ग्राफ, ये ग्राफ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके इनवर्स का ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो इनवर्स का ग्राफ होता है ये इस तरह से, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब आप देखिए हमारी जो एक्स एक्सिस यानी कि डोमेन हमारा ये है, यानी ये हमारी एक्स एक्सिस बनेगा और ये हमारी वाई एक्सिस पर जाएगा। तो हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू -1 to 1 है, तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की वजह से ग्राफ केवल इतना ही साइन इनवर्स का ग्राफ हमें माना जाता है, साइन इनवर्स का ग्राफ, क्योंकि इसी में ये 1/2 है। अब बड़ी मज़ेदार बात जो है इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ y इक्वल टू x इज़ एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देन x इक्वल टू एफ इनवर्स y, हमने अभी भी पढ़ा था कि x इक्वल टू एफ इनवर्स y बन जाता है। दस द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स function can be obtained from the graph of original function of interchanging x and y axis. Point AB on the graph becomes the point BA on its inverse of to be its corresponding point on sine inverse। यानी कि हमने अभी पढ़ा था y इक्वल साइन इनवर्स x, देन x इक्वल साइन y। यानी यदि आप y को x और x को y कर दें तो फंक्शन इनवर्स बन जाता है एक दूसरे का। तो इसी तरह से हमने क्या किया, इस एक्सिस को बना दिया x एक्सिस, इस एक्सिस को बना दिया x एक्सिस। देखो इसको मैं ऐसे घुमाऊं तो ये x एक्सिस बन गई, ये देखिए ये
और ये यहाँ +1 है या -1 है, तो ये +1 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया, तो ये एक्सिस बन गई ऐसे। लेकिन अब आप देखिए जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, यानी यहाँ x डैश और यहाँ x आएगा, यानी हमारी y एक्सिस y डैश और y, लेकिन फिर उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो इसको हमने यूँ रोटेट किया और फिर उल्टा रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये हमारा इन्वर्स का ग्राफ आ गया। यानी हमें इसमें x एक्सिस को y एक्सिस में और y एक्सिस को x एक्सिस में कन्वर्ट करना है। देखिए y एक्सिस को x में और x को y में, तो जब ये कन्वर्जन हो जाता है तो हमारा यही ग्राफ, इसी ग्राफ से हम इन्वर्स का ग्राफ में गेन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि -1 से 1 के बीच का ग्राफ जो मैंने यहाँ पर डार्कन कर दिया है, केवल यही इन्वर्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, बाकी ग्राफ की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।